Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back. So we were done with these 6 questions. Now we are going to start the 7th question here. So the question is, a milkman sold 2 of his buffaloes for 20,000 each. On one, he made a gain of 5% and on the other, a loss of 10%. So we have to find the overall gain or loss. Okay students, so the question is, let's say a milkman, he has sold 2 of his buffaloes for 20,000 और उसमें से एक वाले में उसको गेन हुआ है 5% का और एक में लॉस हुआ है. तो मैंने बस ये बताना है कि जो ओवरऑल है वो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है और जितना हो रहा है वो भी बताना है. सो हियर इज द क्वेश्चन. लेट्स सी. बस मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया है. दिस इज फॉर द फर्स्ट बफेलो एंड दिस इज फॉर द सेकंड वन. सिंस एसपी इज बोथ सेम फॉर बोथ, सो एसपी इज दैट इज द सेलिंग प्राइस, दैट इज ₹20,000 and the profit here is 5%. Okay. So students, there is an equation, there is a formula for doing the questions. When you know the selling price and the profit, the formula for finding the cost price is 100 upon 100 plus profit percent into SP. And when you know the selling price and the loss, then the formula for the cost price becomes 100 upon 100 minus loss percent into SP. Okay, you have to remember these two formulas. So I am going to use this formula here to find the SP, to find the CP, sorry, because हमें अगर profit अगर मुझे ओवरऑल निकालना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है. ओके, सो प्रॉफिट निकालने का तरीका यही है कि अगर मेरे पास एसपी है तो मुझे सीपी पता होना चाहिए, बिकॉज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बोथ वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ एसपी एंड सीपी. राइट, हमें एसपी भी चाहिए, सीपी भी चाहिए. इन क्वेश्चंस में एसपी है बट देयर इज नो सीपी, तो मुझे सीपी ही निकालना है. अभी सीपी निकालने का एक ही तरीका है कि मेरे पास एसपी भी है, प्रॉफिट भी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे एसपी और लॉस है तो ये फॉर्मूला लगेगा. ओके, सो हियर इट इज 100 upon 100 plus profit percent is 5. Okay, it's not 5% because it's said that the profit percent, that means the profit percent is 5 only, into SP, that is 20,000, and the answer will be 100 upon 105 into 20,000. So here it is 5 into 21, that is 105, and 5 into 20 is 100. So the answer becomes 4 lakh upon 21, that is in rupees, it's rupees. Okay, and here by using the formula for the loss percent and the SP, so the formula here is 100 upon 100 minus 10 into 20,000. It will be 100 upon 90 into 20,000. Since this 1 and 1 0 will get cancelled out, and the answer will be 2 lakh upon 9. So this is the CP for the first buffalo जिसमें profit हुआ, and this is the CP for the second buffalo जहाँ पे loss हुआ. See, अब मैंने जब ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस निकाला है, दैट मीन्स आई नीड टू नो द ओवरऑल एसपी एंड ओवरऑल सीपी. सी, द ओवरऑल एसपी इज इजी, दैट इज जस्ट एडिंग दीज टू, एंड फॉर द सीपी नाउ इट ऑल्सो इज इजी बिकॉज आई नो द सीपी ऑफ द इंडिविजुअल वंस, तो मैं इनको ऐड कर लूंगी, दैट विल बी माई overall CP. Okay, so the total SP or the overall SP, that will be this plus this, SP आ गया, and the CP will be this plus this. So here what I am doing, यहाँ पे LCM निकाला गया है 9 and 21 का. It is 3 3 are 9, 3 7 are 21. So 3 1 7, it's 7 and 1. 3 into 3 is 9 and 9 into 7 is 63. So LCM निकाल के, so the answer here is 265 times 0 upon 63, and by dividing it further it is 41269.84. See, this is the overall CP and this is the overall SP. So जब भी CP ज्यादा होगा और SP कम तो हमेशा लॉस होता है, राइट, और जब SP ज्यादा होगा और CP कम तो प्रॉफिट होता है. तो इतना तो पता चल गया कि जो है वहां पे लॉस है. अब लॉस कितना है, that will be CP minus SP, and that is 1069.84. Now the 8th question is, the price of a TV is rupees, this is 13,000. The sales tax charged on it is at a rate of 12%. So find the amount that the Fahim has to pay. Okay, तो अभी जो प्राइस है एक टीवी की वो 13,000 और सेल टैक्स भी 12% है. सो जस्ट सी द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000. ओके, और जो सेल टैक्स का रेट है दैट इज 12%. दैट मीन्स 12% किस पे होगा, वो इस प्राइस का 12% जो है उसको और देना है. तो सेल टैक्स करके कोई रेट वो है टैक्स, उस पर
तो सेल टैक्स कितना है, ये तो सेल टैक्स का रेट है, मतलब परसेंट है, तो सेल टैक्स कितना होगा, दैट विल बी दिस इनटू दिस, ओके, मतलब ये ऑफ दिस, दैट मीन्स 12% ऑफ दिस। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि कोई चीज खरीदी उसका अलग भी कोई सेल टैक्स रेट जो हमें देना है वो कितना होगा, 12/100 इंटू 13,000, इट इज 1560। दैट मीन्स जो हम चीज खरीद रहे हैं, द थिंग दैट वी आर गोइंग टू बाय, वी हैव टू गिव दिस extra charge on that. So the amount that is payable to Fahim, I think that is 13,000 the rate plus the sales tax, that is 1560. So the final amount payable, that is 14560. Okay. अगर स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा होता कि डिस्काउंट है तो मैं ऐसा करके कर देती, फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देती, उस चीज पे वो डिस्काउंट था, ये समझ लो कि इस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ओके। And the 9th question here, it is Akram bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pay is rupees 1600, find the marked price. ओके अब क्या बताया जा रहा है कि असलम ने कोई चीज, वो स्केट्स खरीदे, पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे, वो 1600 पे लिए, बट जो 1600 है दैट वाज द price that he paid after a discount that was given to that thing, that was 20%. तो उसकी marked price, जो पहली प्राइस थी वो क्या थी, ओके। सो सी लेट द मार्क्ड प्राइस भी 100। जब भी अभी मार्क्ड प्राइस पता नहीं है तो मेरे को एज्यूम करूँ चलो वो 100 है, तो 100 के हिसाब से पहले मैं निकालती हूँ, ओके। डिस्काउंट उस 100 पे, एज्यूम द मार्क्ड प्राइस वॉज 100, तो डिस्काउंट है वो 20% है, दैट मीन्स वो 20% होगा इस मार्क्ड प्राइस पे, राइट। So that will be 20% of 100. That means 20 upon 100 into 100. So it will be 100 will get cancelled out and the answer will be 20. That means the discount was 20 rupees. So what will be the sale price? That will be the marked price minus discount. That means उसकी price थी, उसमें जितना discount हुआ उसको obviously मैं subtract करूंगी, तो उतना पैसा मैंने अब देना है. That means 80 rupees देने हैं 100 पे. So if the sales price was 80, the marked price is 100. Okay. And if the sale price is 1, तो marked price कितनी होगी? That will be 100 upon 80. ऐसे तो हमें पता है ना, बिकॉज अगर 80 से हमें 1600 नहीं आता तो पहले हम 80 से 1 के लिए निकालेंगे, 1 के लिए, तो फिर इजीली 1600 के लिए निकलेगा. दिस इज द यूनिटरी मेथड जो हम यूज करते हैं. एंड इफ द सेल्स प्राइस, व्हाट वाज द सेल प्राइस इन दिस क्वेश्चन? दैट वाज 1600. सो द मार्क्ड प्राइस विल बी this into 1600. So the answer is 0 and 0 will get cancelled out. 8 into 20 is 160 and this is 2000. That means the marked price was 2000. Now the last question of this exercise is, I purchased a hair dryer for 5400 including 8% VAT, that is value added tax. Find the price before the VAT was added. Just ये बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है. सी लाइक द ओरिजिनल प्राइस उसकी थी वो 100 है, बिकॉज 100 ही हम लेते हैं ज़्यादातर. तो ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट जो बनेगा दैट विल बी, क्योंकि बताया गया ना ओरिजिनल प्राइस, तो उसको वैट के साथ इट विल बी 100 प्लस, बिकॉज दिस टैक्स वॉज 8%. आई थिंक द डिस्काउंट वॉज 8%. हाँ 8% जो वैट था, ओके. तो वैट किस पे होगा? ओरिजिनल प्राइस पे ही होगा. सो इट विल बी 8% ऑफ 100. इसके बाद एक और लाइन लिख देना, वैट परसेंट इज 8%. ओके. सो ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट इज दिस. सो कैंसिल आउट हो गया, बिल अमाउंट हो गया 108, मतलब वही वैट जो से पीछे उसको टैक्स लगा था ना, सेल टैक्स उस क्वेश्चन में, जस्ट लाइक दैट हमें भी टैक्स लग रहा है. मतलब जो बिल अमाउंट है वो 108 मुझे देना है, क्योंकि 100 उसकी ओरिजिनल प्राइस है, उस पर वैट 8 रुपए का लग गया. सो द आंसर 108 हो गया. ठीक है. नाउ इफ द बिल प्राइस वॉज 108, ओरिजिनल प्राइस हो गई 100. ठीक है. अब बिल प्राइस अगर 1 है तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी? 100/108. लेकिन बिल प्राइस इस क्वेश्चन में क्या है? दैट इज 5400. अगर बिल अमाउंट 5400 है तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी? इट विल बी 100/108 इंटू 5400, राइट. तो यहाँ पे बस को कैंसिल करके इट इज 100 into 50. So the answer is 5000. That means before adding the VAT tax, जो पूरे पैसे जो उनको पहली जो प्राइस थी उसकी, that was 5000. I hope it's clear to everyone.